मुझे लगता है डेली रेटेड आप रेगुलर एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करते हैं, जिनको 1/4 तनख्वाह मिलती है रेगुलर एम्प्लॉय, और उनको ही कंफर्मेशन, पे रिवीजन और सबका बेनिफिट सबसे लेट मिलता है। मतलब उसका मिस्टर सेक्रेटरी, व्हाई डोंट यू टेक अ डिसीजन टू गिव बेनिफिट टू ऑल व्हेन यू नो दैट दे आर एंटाइटल्ड? Sir, it's actually we have to take approval from the cabinet, sir, for because कैबिनेट इज अबव हाई कोर्ट। no sir, आते हैं sir. क्लास 3, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 कोई लिटिगेशन नहीं आता हमारे पास। हार्डली एक आता है कि इंक्रीमेंट डिले हो गया या कुछ सीआर प्रमोशन या सीआर का। ये सारे क्लास 4 के क्यों आते हैं? क्योंकि ये आपकी मर्जी पे काम करते हैं वहां पर। एक स्ट्रोक में आप 1000 लोगों को विड्रॉ कर लोगे, एक स्ट्रोक में टर्मिनेट कर देंगे, एक स्ट्रोक में 20 साल पहले पे स्केल दिया उसको वापस ले लेंगे, रिकवरी आएगा, तो हमारे 1000 पिटीशन आ जाती है। सैंक्शन है नहीं है, आपके डिपार्टमेंट के नहीं है, सेटअप नहीं है, बट दे आर वर्किंग फॉर यू। आप इनसे काम ले रहे हैं, आप अपना डिपार्टमेंट चला रहे हैं इनसे, घर बैठे तो किसी को दे नहीं रहे हैं पैसा, पर रेगुलर एम्प्लॉय का काम कर रहे हैं। अगर इतने नहीं रखते आपको, इतना आपको रेगुलर रखना पड़ता है, पर इतने साल से काम ले रहे हैं, मतलब रेगुलर वर्क इज देयर। Why you compel us to call your presence? सर विलम्ब के लिए क्षमा चाहते हैं सर। ये तो बड़ा इजी है बोलना, क्षमा, अनकंडीशनल अपॉलॉजी, बट सर आप मजबूर करते हैं हम लोग को बुलाने के लिए कि आपको बुलाया जाए, बिना बुलाए ऑर्डर होता नहीं। सर क्षमा चाहते हैं, विलम्ब हुआ है फील्ड फॉर्मेशन में कुछ अकेला आपकी या आप इस केस की बात नहीं है, नॉर्मल प्रैक्टिस गोइंग ऑन इन गवर्नमेंट। जब तक हम प्रेजेंस का ऑर्डर करेंगे 48 आवर्स में ऑर्डर कंप्लाई हो जाता है, जो ईयर्स टुगेदर नहीं होता कंप्लाई। अब सर प्रोसेस शुरू हो गई है सर। चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया है सभी विभागों के लिए कि जो भी ऑनरेबल कोर्ट हैं वीकली बेसिस पर रिव्यू हो, और हम लोग एडवोकेट जनरल ऑफिस से भी संपर्क में हैं सर। इस प्रकरण में विलम्ब के लिए क्षमा चाहते हैं सर हम शासन के। कुछ तो एक्सप्लेनेशन हो। 4 एम्प्लॉइज हैं ये, एट योर मर्सी दे आर वर्किंग। कोर्ट में आने के लिए एक लिमिटेशन होता है इनके लिए, डर होता है जाए कि नहीं जाए, नौकरी चली जाएगी। That's why you all are very comfortable sitting in the AC chamber. You have no compassion for these. In these particular cases, what happened was, matters went up in an appeal, and thereafter the appeals were withdrawn last year. appeals were withdrawn. Years आप लोग के लिए बहुत होता है, but इनके लिए एक महीना बहुत important होता है। After the appeals were withdrawn, unfortunately, there was no direction from the state government that these appeals are required to be withdrawn. Under some circumstances, all those appeals were withdrawn. Thereafter, my lord, since in certain cases, payments from the date of filing of the petition was given, so those calculations were made in respect of every different employee. And thereafter, my lord, all the amount has been deposited in their account. Now, even, my lord, today there are certain persons who are saying that the exact amount has not been given. There are certain reasons. There is one matter, my lord, wherein we have given them the benefit, but except for the period in between which he was not employed with us. He went on deputation to some other department. And then in one of the matter, my lord, there was some recovery against the incumbent. So that portion has been withheld. Otherwise, my lord, in respect of all the persons, with respect to 5th, 6th and 7th pay commission, my lord, the payments are made and the deposits have been made in their accounts, my lord, in respect to accounts. 7th के लिए 1/1/2016 से made applicable है. Orders had been issued by this honorable court in the year 2019. They have not complied till 2023. So my lord has pleased to direct personal presence of the respondent, my lord. This is a willful disobedience of the order passed by this honorable. This has been held by the honorable Supreme Court that once the petitioners has been granted the 5th pay commission's recommendations, then they are also benefit of the 6th pay commission has to be extended. Now when the 7th pay commission recommendation has been accepted by the government, then the petitioners or the daily rated employee in whose favor 5th and 6th pay scale recommendation has been extended, then automatically 7th pay scale commission's recommendation is also. अभी ये ऑर्डर किसका है? 5th 6th का है? 7th का है. 5th 6th 7th तीनों हो गया. तीनों
दिस थिंग 5th 6th 7th तीनों के लिए ऑर्डर्स निकलते हैं, तीनों के अमाउंट्स उनके अकाउंट्स में डिपॉजिट। मतलब 30 years, 5th होगा 10-10 साल में आते हैं। मतलब रिवीजन का ऑर्डर ही अब हुए, क्योंकि इनिशियली मतलब दैट वाज नॉट मेड एप्लीकेबल टू डेली वेजेस एंड इट वाज ओनली आफ्टर द ऑर्डर्स मतलब फ्रॉम दिस Daily wage are compelled to- एप्लीकेट बिकॉज मतलब द रिकमेंडेशंस वर एक्सेप्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर एम्प्लॉइज ओनली। For daily rated मतलब it was the orders of the Honorable High Courts which went up to the Supreme Court that the recommendations were implemented और subsequently. मुझे लगता है डेली रेटेड आप रेगुलर एम्प्लॉय से ज्यादा काम करते हो, They are doing जिनको 1/4 तनख्वाह मिलती है रेगुलर एम्प्लॉय, और उनको ही कंफर्मेशन, पे रिवीजन और सबका बेनिफिट सबसे लेट मिलता है। मतलब उसका कारण ये They are rather saving your state money. मतलब but the problem is their initial inception is not as per the rules, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। Had there been That inception, is why गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि We are walk-in not तो है नहीं saying आपके that नीचे चल के आगे और उनका काम पे आगे रखा आप ही लोगों ने। हाँ हाँ मतलब बिल्कुल हमारी लोगों ने रखा एट दैट पॉइंट ऑफ बेनिफिट टाइम देने के बाद आती है। रेलेवेंट ई थे उनके ऑर्डर्स से लेके अपॉइंटमेंट हुए तो हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके कोई वॉक इन Ease वॉक में आउट है होता कि है। जब जब आएगा काम करेगा चला जाएगा। एज ऑफ नाउ सभी को ऑर्डर्स करनी है, नॉट ओनली दीज केसेस, दोज केसेस विच others are pending in respect of those cases also. so interest part. कितने लोग हैं ऐसे टोटल? But as number of petitioners, my lord. अरे फिर नॉट अपार्ट फ्रॉम पिटिशनर, इसके अलावा कितने हो रहे? total Those who have not approached or those who have not filed contempt but petition. still they are approaching, but as today I have received 2 petitions, my lord. After the, because what happened is, my lord, in certain cases person filed a petition, got an order in respect You of don't know how certain, many these type of persons are working in your establishment? around 2000. To give benefit to all 2000. Why you are compelling them to approach court and obtain the order? But there is a reason, my lord, because as In of RES या PHE matter, the cabinet took a decision to give benefit to all those who have not even approved. उनका भी contempt यहीं आया था। no, that is what we will do, because for implementing it in respect of all other persons, we'll take an approval and then because ultimately if the cabinet says, then it will be extended to all 2000 persons. Because as of now, without any orders, specific orders in respect of most persons. हाई कोर्ट का 50% वर्क इसी से ही बढ़ जाता है। मतलब आज भी प्रेरणा और मधुसूदन जजमेंट आ रहे हैं आज भी आ रहे हैं। सालों मधुसूदन जी, आपके पास प्रेरणा मधुसूदन जी, आज 10 साल हो गए। मतलब मैं जब प्रैक्टिस करता था तब Yes, yes. हमने स्टार्ट किया था जब गवर्नमेंट ये क्यों नहीं एक्सरसाइज करती कि हम एक टाइप के केसेस में सबको बेनिफिट दें? क्यों हर कोई कोर्ट जाएगा, पिटीशन लगाएगा, कंटेम्प्ट लगाएगा, फिर आप Even इसमें रेट अपील भी लगाएंगे, नया वाला फिर रिव्यू लगाएंगे, होगा। फिर जाके कहीं उसको बेनिफिट मिलेगा। but कुछ तो जैसे रिव्यूज तो इस वजह से भी हो जाते हैं, जैसे Mr. Secretary, why don't you take a decision to give benefit to all when you know that they are entitled? So it's actually we have to take approval from the cabinet, sir, for because Cabinet is above High Court. no, sir. फिर आप आते हो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गया है, अप्रूवल के लिए गया, तो दे आर अबव हाई कोर्ट। वंस द हाई कोर्ट हैज सेड कि दे आर एंटाइटल्ड, दिस मैटर इज एंड यू हैव टू कंप्लाई इट। व्हाई फाइनेंस अप्रूवल फ्रॉम कैबिनेट, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर सैंक्शन ऑफ द अमाउंट, बट नॉट मोर देन दैट। Sir. बट यू टेक अ परमिशन फॉर फाइनेंस की नहीं कि देना है कि नहीं देना है। व्हाई? मतलब हाई कोर्ट हैज सेड देना है तो देना है। फाइनेंस में सिर्फ उसके लिए जाता है देना है या नहीं देना है। नहीं ऑब्जेक्शन भी आते हैं फाइनेंस से, फाइनेंस परमिशन लेते हैं आप लोग फाइनेंस के ऊपर कि देना है कि नहीं। क्योंकि फिर मेरे को ऑडिशन में ऑब्जेक्शन लेते नहीं तो अदरवाइज बात, इस वजह से प्रॉब्लम कि आपने किस हेड में दे दिया है पैसा। ये तो अभी कुछ ज्यादा नहीं होंगे जिनकी कंटेम्प्ट लगी 50-60 नॉट मोर देन हाँ मतलब बट नहीं, कुछ में है ज़्यादा सही 300 है। हाँ 301 का अभी परसों जो कैबिनेट लास्ट कैबिनेट 7th में कितना उसका अमाउंट आ रहा है टोटल क्या अमाउंट? सर अमाउंट 6.5 करोड़ के लगभग अभी वाला है सर। इतना एक्यूमुलेट हो गया, इतने साल से नहीं दिया तो। सर सबमिशन इफ यू परमिट आई वुड लाइक हाँ बताइए प्लीज। फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी वी आर फाइनली जो बिजनेस एलोकेशन रूल्स में डिपार्टमेंट किसी भी फाइनेंशियल इशू पे दे हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट।
The moment you order, we submit the proposal for clearance from the finance and then we go to the cabinet. हर डिपार्टमेंट में जैसा सर ने कहा PHE का जब सेटल हुआ है उसके आधार पे हम लोग गए सर, और लास्ट वीक ओनली वी हैव गॉट क्लियरेंस फॉर द 7th पे कमीशन 101 के सेट। जैसे जैसे होता है सर, हम लोग तो सबसे ज्यादा सर कोर्ट के ऑर्डर के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमीडिएटली इसको मूव करते हैं। अन्य में ऑर्डर सर बिजनेस एलोकेशन में स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट ही करता है सर, दिस इज सबमिशन। फंड एलोकेशन की बात होगी, बजट एलोकेशन फंड इतना ज्यादा, इसलिए आप एक केस किसी का अलाउ हुआ उसको पैसा देना है, उसका उतना अमाउंट नहीं होगा जिसके लिए आपको कैबिनेट या फाइनेंस डिपार्टमेंट जाना होगा। जब इतने ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं केसेस एक साथ, तब जाके कहीं आपको फाइनेंस प्रॉब्लम आती है। अगर ये तो एक ई लेवल का के लिमिट में आ जाएगा ये तो सबको पास करना, अगर आप एक एक इंडिविजुअल का केस देखेंगे तो कोई, लेकिन सर ऑर्डर जो होता है वो आपको इतना अभी 6 करोड़ क्यों दिख रहा है, क्योंकि इतने लोग का एक साथ इकट्ठा हो गया है। अगर आप एक एक इंडिविजुअल का केस लेंगे तो हर डिवीजन में अपना ई उसको एग्जामिन करके पैसा रिलीज करके दे सकता है। सर फिर क्षमा के साथ सर, यदि हम उसको केस लगाएंगे until unless फाइनेंस गिव्स क्लियरेंस ऑनलाइन, ट्रेजरी से ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाएगा सर, इसलिए सर हम लोगों को जाना पड़ता है। यू आर एब्सोल्यूट, ये एक प्रोसीजरल है जो फॉलो होना, इसमें फाइनेंस को कोई हमारा ऑर्डर से में इंटरफियर करके उनको नहीं बोला कि ये पैसा इतना है, आप वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि अमाउंट आपने 1 लाख कैलकुलेट वो कहेगा 90,000 मिलेगा, लेकिन देना है नहीं देना ये तो वो थोड़ी डिसाइड करेंगे, जो देना ही है वो तो पैसा जिनमें कोर्ट का ऑर्डर है उसमें दे नहीं है, तो उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी ओपिनियन थोड़ी देगा कि नहीं देना कि कोर्ट का ऑर्डर गलत है। वो तो जो अप्रूवल है वो प्रोसीजर है, वही बैंक में आप अपना पैसा भी निकालोगे तो एक विड्रॉवल फॉर्म भरोगे तब आपका पैसा मिलेगा, ऐसे थोड़ी आप उनका सर कोर्ट का विलंब हुआ है सर, क्षमा चाहते हैं। वो प्रोसीजर है, उसको दैट कांट नलिफाई द हाई कोर्ट ऑर्डर। वो प्रोसीजर आप फॉलो करें, बट उसमें सालों क्यों लग रहे हैं, उसमें 4 साल थोड़ी लगते उस प्रोसीजर को फॉलो करने में। नहीं लगना चाहिए सर, फेड वालों का इंटरप्रिटेशन को हुआ है, पुनः क्षमा चाहते हैं सर। क्लास 3 क्लास 4 क्लास 3 क्लास 2 क्लास 1 कोई लिटिगेशन नहीं आता हमारे पास, हार्डली एक आता है कि इंक्रीमेंट डिले हो गया या कुछ सीआर प्रमोशन या सीआर का। ये सारे क्लास 4 के क्यों आते हैं, क्योंकि ये आपकी मर्जी पे काम करते हैं वहां पर। एक स्ट्रोक में आप 1000 लोगों का विड्रॉ कर लोगे, एक स्ट्रोक में टर्मिनेट कर देंगे, एक स्ट्रोक में 20 साल पहले पे इसके लिए उसको वापस ले लेंगे, रिकवरी आएगा, तो हमारे 1000 पिटीशन आ जाती है। सबसे ज्यादा लिटिगेशन क्लास 4 का है, और उनको 5th के लिए लगाना पड़ा, 6th के लिए लगाना पड़ा, 7th के लिए। हर पे स्केल में आपके ये 2-2 हजार लोग पिटीशन लगाएंगे तो हाईकोर्ट को इतना बर्डन होगा, और एक केस नहीं होता, कंटेम्प्ट भी होगा, कंटेम्प्ट भी होगा, सब होगा। तो गुड फॉर लॉयर फैटर्निटी बट नॉट फॉर बट नहीं सर, हम लोगों को बट आफ्टर ऑल दे आर clear persons, sir. yes, They are daily very wage, daily or wages. fixed salary, and for that they will have to pay to the lawyer. So there is no explanation for delay of 4 years, 3 years, 4 years. और अब जब प्रेजेंस का ऑर्डर किया तो कितनी देर में हो गया ये काम, जो काम आज से 4 साल पहले हो जाना। इवन जिन पिटीशन में नोटिस नहीं हुए सर उनमें भी पेमेंट आ गया सर, अभी मुझे विड्रॉ करनी 2 पिटीशन कंटेम्प्ट पिटीशन कल लगी है सर, मैंने बोला भी। आप ही लोग मजबूर करते हैं प्रेजेंस का ऑर्डर करने के। अब आप आए तो आपके साथ देखिए कितने लोग आए, ये सब अपना अपना ऑफिस से आज का काम छोड़ के आज सुबह से सब बैठने यहाँ पर। अगर ये काम रूटीन में होता रहेगा तो ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसको उतने दिन में कंप्लाई होना। तो ज्यादा केस हो जाते तो वॉल्यूम दिखता है, तो फिर वॉल्यूम दिखता है, तो फिर वॉल्यूम तो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता कि हम पेमेंट करें। दिस इज द प्रॉब्लम। ये आपके अकेले डिपार्टमेंट नहीं, हमको हर डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है। ये एक्यूमुलेशन के कारण कितने लोग का एक साथ एक्यूमुलेट हो जाता है। Ensuring compliances है। आपको यहाँ ज्वाइन किए कितना टाइम हुआ? 1 साल पिछले साल अप्रैल 22। सॉरी। और आपकी नॉलेज में अभी आया जब यहाँ से हमने, उसके पहले तक आप तक बात नहीं पहुंची? नहीं था सर। तो आपने किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है क्या कि ऐसे सिचुएशन क्यों आई है? सर मैं अलग से सर निश्चित रूप से इस केस में जो फीड फॉर्मेशन में लापरवाही है देखेंगे सर। उसका कंप्लाइंस हम मांगेंगे आपसे, आपने क्या एक्शन लिया सबऑर्डिनेट ऑफिसर।
और जो इंटरेस्ट का लाइबिलिटी वो सब जिनने डिले किया उन पे जानी चाहिए। गवर्नमेंट क्यों उठाया है आपने? इंटरेस्ट दे हैव नॉट पेड मतलब इंटरेस्ट नहीं दिया सर, है? इंटरेस्ट नहीं दिया सर, दे हैव नॉट पेड एनी अमाउंट। सर एनपीएस में भी लॉस हो रहा है 14%। और आपकी रिकवरी में तो इंटरेस्ट हो कितने 12% कितना लगा? कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है उसमें। अभी कल आया था 80,000 का प्रिंसिपल अमाउंट था, 3 लाख इंटरेस्ट लगा। उसी रेट पे लगाते हैं इसमें इंटरेस्ट। ये मिस्टर पटवा ये सब इतने से इकट्ठे हो जाते तो अब इंडिविजुअल देखना बड़ा मुश्किल होगा। एक एक केस एग्जामिन करना। पहले टाइम के ऊपर आपको भुगतान किया सर? मिनिमम ऑफ पे स्केल ऑफ द पोस्ट है, तो जो भी जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उस पोस्ट की उनको मिनिमम ऑफ द पे स्केल देना है। वी आर वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ टाइम कीपर में दिया मतलब एक्सप्लेनेशन जिस केस में ऑर्डर किया था मतलब कंटेम्प्ट 132 व्हिच इज लिस्टेड एज आइटम नंबर 141 यस जी। डॉकेट नंबर 4400 में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आपका डिले का। up to 21 Malad the matter was pending before the honorable apex. बट नो स्टे वाज Malad, there was no stay Malad. In fact, all those matters were filed here, and since there were 2-3 cases which were filed at Jabalpur, thereafter Malad, all these matters from Indore were transferred to Jabalpur Malad. And after the withdrawal of these appeals Malad, unfortunately Malad, this order was never communicated to the department. It was ultimately on the basis of the petitions which were filed by the petitioners, Malad, we came to know that all these matters were withdrawn. After instruction, my lord, this has been, the cases has been listed before the Honorable Division Bench. अनुमान उल्लेख किया। आप लोग कहोगे पेमेंट? सर इंटरेस्ट नहीं हुआ सर, इंटरेस्ट पार्ट इन माय कंटेंट पिटिशन देयर इज ए स्पेसिफिक मिस्टर प्रतीक के केस में मिस्टर प्रतीक पटवर्धन के केस में क्योंकि वो जिस पीरियड के लिए एनवीडीए में नहीं थे उस पीरियड का पेमेंट नहीं हुआ उनको। 5th का दे दिया बेनिफिट, 7th का दे दिया। इन द मीन टाइम ही वेंट ऑन डेपुटेशन, ही लेफ्ट द डिपार्टमेंट एंड आई सपोज ही जॉइंड रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नहीं पीडब्ल्यू जनपद पंचायत जोबट। हाँ, तो वहाँ पे तो बेनिफिट तो मिलेगा वहाँ पे। बेनिफिट तो देना पर वो मतलब has to be paid by the parent डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू पे। वो लगा के तो आप ही भेजेंगे ना, पेमेंट वहाँ से होगा, फिक्सेशन तो आप ही करोगे ना। आएगा वहाँ से मतलब एंड विल ओनली अप्रूव इट। पहले आप अप्रूव करके वहाँ भेजेंगे, वहाँ पेमेंट होगा, वो नहीं लगाएंगे। बोरिंग डिपार्टमेंट पेरेंट आपका है। ठीक है, 6th पे कमीशन का जो उनको बेनिफिट देना था वो रहेगा, 5th दे दिया और 7th दे दिया। फरवरी 2008 टू जुलाई 2017 उस पीरियड का पैसा नहीं मिला है। बट ये इंटरेस्ट, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? Malad में kindly see Malad till 2021 Malad the list was pending Malad. इंटरेस्ट इज व्हेन दिस अमाउंट बिकेम ड्यू टू मैं पढ़ देता हूँ सर, ऑर्डर में पढ़ देता हूँ सर मैं। ठीक है, वो है, नो डिस्प्यूट अबाउट। जी जी We are not disputing that part, not that it was there Malad, since the issue in respect of which the recommendations were required to be implemented, that issue was pending Malad. Therefore Malad, no interest is applicable on that because Malad ऐसा नहीं है कि इनको सैलरीज नहीं दी as per, since Malad they were daily rated employees. यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड। Malad, we are not, we never took any stand that we are Salary तो obliged देनी because they were पड़ेगी। working and we have made the payments Malad. They were working on that post and we have made the payments. The only difference was that they recommend the applicability, the enhancement which they were asking for with respect to the recommendations which were made by the pay commissions Malad. Since the pay commission itself said that the state government were accepting those recommendations, those recommendations were not accepted in respect of daily wages Malad. Those recommendations with respect were accepted only with respect to the regular employees to whom those benefits were granted. Now, in respect of these persons, Malad, again, an anomaly occurred on account of two things, Malad. In certain cases, there was an order that you have to pay them from the date of filing of the petitions. So, to those persons, we paid from the date of filing, like in item number 141, Malad. We have paid in 2017 itself from the date of filing. Now for interest there is another round of litigation.
फिर अगेन दे विल हैव टू फाइल एंड क्वांटिफाई कि कितना अमाउंट इंटरेस्ट. कंटेंट विल नॉट एग्जामिन हाउ मच इज द इंटरेस्ट एंड ऑल. अगेन दे विल ऑल कम फॉर इंटरेस्ट पार्ट. So who will do all this exercise? How much interest is payable? Who will calculate? So far as that interest part is Malad, and Malad has to be as of now, Malad, since there is no specific orders in respect thereof, to Malad, it will be very difficult from this point of view of the state government also to accord any particular rate of interest to each and every person, Malad. Normal बैंक रेट. बैंक रेट आपका एनपीएस का जो रेट होगा वो रेट. But again, the financial implications and again the approval from cabinet would be आप required. 10 साल पे नहीं करेंगे तो क्या होगा. Because without the approval of the cabinet, it would be. ऑर्डर में ये इंटरेस्ट के साथ ऑर्डर में है सर. उसमें क्या अप्रूवल की जरूरत है. Dealing with the appellants are liable to pay interest at the rate 12% per annum from the ये date of 12% है. date of entitlement till the amount हमारा is होता actually ये है paid. कि ऑर्डर सिर्फ ये रहता है कि इन लाइट ऑफ दैट ऑर्डर दिस इज डिस्पोज्ड ऑफ. सभी केसेस में मैक्सिमम ऑर्डर है उसके अंदर. हाँ. Mutatis अगेन वो अलग अलग केस में फिर एग्जामिन करना पड़ेगा कि जिसमें म्यूटेटिस म्यूटेंटिस का ऑर्डर है, जिसमें उससे से क्या ये सबको देना सर ये तो. उससे क्या फर्क होता है. हम 10 पेज का मेरिट में लिखें या एक पेज में उसको यूनिफॉर्म पॉलिसी तो अडॉप्ट करनी पड़ेगी मुलाडी में. रेट सबकी अलग होगी. वो तो सबकी अलग होगी. अपॉइंटमेंट किसी का अलग होगा, किसी का अलग. इंटाइटलमेंट की डेट अलग होगी. so far as interest part is concerned, the state government have to decide what, Why this? because it will not be applicable only in respect of these persons. The impact will be with respect to those 2,000 persons also. The rest of the time. So in that situation, the state would be required to take an appropriate approval from the cabinet also. Because that repercussion will. Who is responsible? They are not responsible. Correct. Court is not responsible. Well, we are not saying so that who is that they are responsible, or the appropriate decision would be required to be taken by the cabinet. Because even as on date, इस compliance में आपको वो भी लेके आना चाहिए था ना डिसीजन. वो तो पार्ट ऑफ ऑर्डर. इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डर. इंटरेस्ट के लिए तो Yes, Mr. Secretary. Interest is a part of order. I can't dilute or I can say that it will not be complied. सर जैसा अभी निवेदन किया गया, हम लोग अमूमन एरियर्स पे गवर्नमेंट सेटअप में अभी तक पे रिवीजन के समय पे इंटरेस्ट इवन परमानेंट एम्प्लॉइज को नहीं देते रहे. इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर है कोर्ट का, तो उसका कंप्लायंस कराएंगे. And it is not applicable to only NVDA, sir. It is for across all the 53 departments we have to take. इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं देते एरियाज पे. तो लेकिन इम्प्लीमेंट भी तो 1 महीने 2 महीने में हो जाता है. ना डिले होता भी नहीं उसमें. जैसे ही गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है आपके फटाफट सबके पे में लग जाता है. सब लागू हो जाता है. थोड़ा सा 1 मिनट समय दिया जाए. हाँ बोलिए, आप 2 मिनट बोलिए. Sir, all the department they have permanent setup. Only Narmada Valley department, Narmada Valley development, it was created in 1985, and there are no permanent posts. There are only temporary posts, and they are deployed from the different departments on deputation basis. Even in this case, sir, against these daily wage workers, there was no formal sanction. All the executive engineers they did on their own, सबको employ कर दिया. जब सभी को निकाला गया तब then these cases आए सर सामने. तो NVDA में even we don't have the temporary setup sanction, तो हमने कैबिनेट से सर टेम्पररी का भी अभी सैंक्शन लिया 6,000 का. अभी फिर ये सारे जैसे ही सबसे निवेदन किया कि मैं 1 साल हो गया, जैसे ही हम लोगों को संज्ञान में आया, वी हैव प्रोसीडेड. फर्स्ट वी गॉट द सैंक्शन अगेन फॉर दिस टेम्पररी पोस्ट. इनको कैलकुलेट करके दिया. और सर अमूमन किसी भी पे कमीशन पे लड़से हम लोग कभी एरियर की स्थिति में नहीं अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा ब्याज का एरियर. तो डिले भी होता नहीं है ना इम्प्लीमेंटेशन में. आप सबको तो फटाफट मिल जाता है डिले. तो कोई डिले होता नहीं तो इंटरेस्ट लगाना नहीं. आज अनाउंस हुआ है
अभी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ से सबको मिलने लगता है। इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। ये तो डिले इन कंप्लाइंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर है। इंटरेस्ट उस पे लग रहा है जो डिले कंप्लाइंस के पार्ट पे नहीं है, अदरवाइज और सैंक्शन है नहीं है आपके डिपार्टमेंट के नहीं है, सेटअप नहीं है, बट दे आर वर्किंग फॉर यू। आप उनसे काम ले रहे हैं, आप अपना डिपार्टमेंट चला रहे हैं इनसे, घर बैठे तो किसी को दे नहीं रहे हैं पैसा, पर रेगुलर एम्प्लॉय का काम कर रहे हैं। अगर इतने नहीं रखते आपको, इतना आपको रेगुलर रखना पड़ता है, पर इतने साल से काम ले रहे हैं, मतलब रेगुलर वर्क इज देयर, रेगुलर वर्क इज देयर। तो वो तो नाउ आउट ऑफ क्वेश्चन है ये सब एग्जामिन करना कि कैसे भर्ती हुए और क्यों काम कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। Obliged.